بات کریں گے پاکستان یا خوارج۔ افغانستان کسی ایک کا انتخاب کر لے، افغانستان کو واضح کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا جو بھی خارجیوں اور بھارتی پراکسیز کی سہولت کاری اور معاملہ فہمی کی بات کرتا ہے وہ انہی کا اعلی کار ہے، اسے بھی اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بنو کنٹونمنٹ کا دورہ۔ فیلڈ مارشل اور اعلیٰ عسکری حکام کے ساتھ اہم بیٹھک میں دہشت گردی کے جڑ سے خاتمے کے لیے اہم منصوبہ تیار، جلد کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ سول اور عسکری قیادت نے 12 شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردوں کا قلع کما کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ ہم پر قرض ہے، چھوڑیں گے نہیں، دہشت گردوں کا قلع کما کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کا وطن دشمنوں کو دو ٹوک پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بنو کنٹونمنٹ کا دورہ۔ پاک دھرتی پر جان قربان کرنے والے 12 شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی، ہر شہید کے پاس جا کر آخری دیدار کیا۔ سی ایم ایچ بنو میں زیر علاج زخمیوں کی بھی عیادت کی۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گرد سرحد پار کر کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے سرغنہ اور سہولت کار افغانستان میں بیٹھے ہیں اور بھارت پشت پناہی کر رہا ہے۔ اب وقت آ گیا کہ افغان حکومت پاکستان یا خوارج میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ میں آج افغانستان کی حکومت کو واضح طور پر پیغام دینا چاہوں کہ وہ دو چیزوں سے ایک کا انتخاب کرتے ہیں، یا پاکستان کے ساتھ صحیح ایک دل کے ساتھ اور سنسیریٹی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا، ان کی پشت پناہی کرنی ہے، تو پھر ہمیں افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ دائمی امن کے لیے فیلڈ مارشل سمیت اعلیٰ عسکری حکام کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا گیا ہے جس کو وہ کابینہ میں لے کر جائیں گے۔ میں نے آج شفا سرار سے اور دوسرے پرو کمانڈر پشاور سے اور دوسرے جو یہاں پہ موجود تھے افسران، میں نے ان سے گفتگو کی ہے تفصیلی، اور اس کے لیے بہت جلد میں ایک منصوبہ کابینہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ شہداء قربانیوں کی ہمیں اس کا لاج رکھنا ہے، اور وہ ان کی قبروں سے روئیں، وہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم نے قربانی دی ہے امن قائم کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اس امن کو قائم کرنے کے لیے جو کچھ آپ سے بنتا ہے وہ کریں، اور انشاءاللہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم مل کر یہ فیصلے کریں گے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ خوارج اور بھارت کی دہشت گرد پراکسیز کی سہولت کاری اور معاملہ فہمی کی بات کرنے والا ہر شخص انہی کا اعلی کار ہے، ایسے عناصر کو اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا کے غیور عوام، ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ مل کر بھارتی پراکسیز کے خلاف بنیان مرصوص کی مثال ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف بڑی کارروائیاں، 45 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ پاک فوج کے 19 بہادر سپوت شہید ہوئے۔ ضلع لوئر دھیر میں آپریشن کے دوران 10 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ یرغمال بنائے گئے شہریوں کی بازیابی کے لیے آپریشن میں 7 جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس سے پہلے باجوڑ میں 22 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ جنوبی وزیرستان بھی خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران 13 خوارج مارے گئے۔ دونوں مقامات پر 12 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تحریک انصاف دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کس کے ساتھ ہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوال اٹھا دیا۔ ایکس پر پیغام میں لکھا کہ خیبر پختونخوا میں افغانستان سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں نے ہمارے 12 جوان شہید کیے۔ نماز جنازہ میں سول اور فوجی قیادت نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سمیت پی ٹی آئی کی قیادت کا کوئی فرد شریک نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی بتائے کیا وہ ہمارے جوان بیٹوں کے بھارتی اسپانسرڈ قاتلوں کے ساتھ ہے یا پھر وطن عزیز پر قربان ہونے والوں کے ساتھ؟ بات کریں گے سیلابی صورتحال کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سیلاب متاثرہ علاقوں کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑا اقدام۔ متاثرہ صارفین کے اگست کے بجلی بلوں کی وصولی فوری روکنے کی ہدایت کر دی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی بلوں سے متعلق جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم نے تمام تقسیم کار کمپنیز کو ہدایت کی ہے کہ سیلاب متاثرہ صارفین سے اگست کے بلوں کی وصولی فوری روک دی جائے۔
जो सार्फिन बिल अदा कर चुके हैं वो रकम आइंदा माह एडजस्टमेंट में की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि IMF से मामला तय पाने के बाद मुतासरा इलाकों के लिए ख़ुसूसी पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में वफाकी सूबाई इदारे अवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तमाम मुतासिन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। जबकि आलमी मालियाती मिशन जायजा ले रहा है कि क्या पाकिस्तान का आइंदा साल 2026 का बजट सैलाब से निपटने के लिए तैयार है। IMF की नुमाइंदा जूलिया कोज़ैक की बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू हुई है। जूलिया कोज़ैक ने वाज़ेह कर दिया है कि नया कर्ज तब ही मिलेगा जब पुराना प्रोग्राम कामयाबी से चलेगा। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जानी माली नुकसान से बचाने के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर तेज़ की जाए। अच्छी तर्ज हुक्मरानी और अवामी शराकत पर मबनी तरक्की वक्त की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सैलाबज़दा इलाकों के दौरे में गुफ्तगू सैलाबज़दगान को उनकी दोबारा आबादकारी और बहाली तक मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ ने सिविल इंतज़ामिया और फ़ौज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर भी जोर दिया। पाकिस्तान हर साल कीमती जानों और इमलाक के ज़िया का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जानी और माली नुकसान से बचने के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर तेज की जाए। फील्ड मार्शल मुल्की तारीख के बदतरीन सैलाब के बाद इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए खुद फील्ड में आ गए। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कसूर सेक्टर, मुल्तान और जलालपुर पीरवाला में रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। मुतासरीन से मिले, दाद रसी की और उनको दोबारा आबादकारी और बहाली तक मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। सिपा सालार को कसूर और मुल्तान में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अहलकारों से भी मुलाकात की। उनके जज्बे, तैयारी और दिन रात की मेहनत को सराहा। सैलाब ज़दा इलाकों का फिजाई मुआयना किया और नुकसानात के साथ साथ इमदादी सरगर्मियों का खुद जायजा लिया। फील्ड मार्शल ने सिविल इंतजामिया और फौज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर जोर दिया। वाज़ेह कर दिया कि अच्छी तर्ज हुक्मरानी और अवामी शिरकत पर मबनी तरक्की वक्त की अहम जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाब की तबाही, 100 से ज्यादा बस्तियां डूब गई। 12 लाख की आबादी वाले शहर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। बड़े पैमाने पर नकल मकानी का अमल जारी है। नबी शाह की बस्ती महेसर में बुरा हाल है, बिजली कट चुकी है। मुतासरीन गर्मी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमत से मदद की अपील कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मलिक सज्जाद ने हमें ज्वाइन किया है। सज्जाद, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अलीपुर हेड पांदन के मकाम पर पानी के बहाव में कमी देखी जा रही है, लेकिन जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलें कम नहीं हो पा रही। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ बेट नबी शाह में, बस्ती महसर में। यहाँ के जो मुकीन हैं इनके चारों तरफ बस्ती के सैलाब का पानी आ चुका है। यहाँ पर दर्जनों एकड़ पर खड़ी फसलात तबाह हो चुके हैं, दर्जनों मकानात गिर चुके हैं। यहाँ पर मुतासरीन शदीद परेशान है। उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मौजा बेड़ नबी शाह में इस वक्त पानी सारा, बस्तियां तबाह हो चुकी हैं। हमारे पास ना खाने पीने के लिए कोई सामान है, ना हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हम भी भूख से मर रहे हैं। ना कोई छत है, ना कोई इंतजाम वगैरह है। इधर सारे हमारा जो है बस्ती बिल्कुल तबाह हो चुकी है। जितनी भी बस्तियां इधर सारी तबाह हो चुकी हैं। उन्होंने अपील की है वजीर आला मरियम नवाज से कि खुदारा हम पे तरस खाया जाए, पहले हम सैलाब में डूब चुके हैं, यहाँ पर हमारी मदद की जाए। जी आपका शुक्रिया। अलीपुर में सैकड़ों लोगों ने हेड पंजनत के हिफाजती बंद पर पनाह ले ली। बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन, बेयारों मददगार। किसी ने अपनी मदद आपके तहत 3000 रुपये योमिया किराया देकर टेंट लगा लिया, तो कोई भूखा प्यासा खुले आसमान तले बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। खुले आसमान तले धूप में हमारा सामान पड़ा हुआ है, ना कोई देखने वाला, ना कोई पूछने वाला। अल्लाह की जात है, हमें खाना भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। जैसे धूप, खुला आसमान में बैठे, रात को ठंड हो जाते, इधर से पानी, इधर से इतने ठटर रहे होते हैं, लेकिन आसमान के नीचे छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे गुजारा करें? सैलाबी रेला आया रात को तकरीबन 1 बजे। हम ऐसे भागे सिर्फ अपने बच्चे लेके बाहर हैं, ये सामने बैठे हुए हैं। हम अपनी मदद आप तहत तंबू भी लिया है, कनाते भी लिए हैं। 2000 रुपए किराया तंबू का है, 1000 रुपए कनातों का है, 3000 रुपए एक दिन का दे रहे हैं किराया। हुकूमत की तरफ से कोई हमारे पास नहीं आया। हम अपनी मदद आप तहत कर रहे हैं, जो भी है। हम बैठे हैं खुले आसमान के नीचे।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और पंजाब के वज़रा का मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर का दौरा, सलाम मुतासरीन के साथ खाना खाया, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज करने की यकीन दहानी कराई। मरियम औरंगजेब ने सैदपुर और मौज़ा-लत्ती का दौरा किया, जहां मुतासरीन में राशन और टेंट तकसीम किए। सलाम मुतासरीन ने इन्हें रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि सलाम मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। चंद्रभान फ्लड बंद की करप्शन में मुलव्विस इरिगेशन हुकाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भारतीय आबी जारहियत के बाइस ऊद शरीफ के 12 से ज़ायद मोहजाजात शदीद सैलाब के सदमे, 20 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। हज़ारों लोग बिंचन बंद पर बेयार मददगार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नुमाइंदा समा मोहम्मद नवाज जाफरी से मज़ीद जानते हैं। जी नवाज, बताइएगा। जी, हालिया भारतीय आबी जारहियत के बायस उस शरीफ के मुतअद्दिद इलाके जो है इसकी शदीद जो हेट में आए हैं। 12 से ज़ायद मवाज़ात जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं और 20 से ज़ायद जो देहात है उनका ज़मीनी राब्ता जो है वो मुनक़ते हो चुका है। हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें जो थी वो दरियाबोद हो चुकी हैं और लोगों के मकान जो है वो यहाँ पर गिरना शुरू हो गए हैं। लोगों के यहाँ से जो है रेस्क्यू तो किया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं और अक्सरियत उन लोगों में वो ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे सामान और माल मवेशी की हिफाजत के लिए जो है वहाँ पे रुक गए थे। उनको अंदाज़ा नहीं था कि पानी की जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि उस शरीफ के जो इलाके इसकी जद में है उसमें बेड अहमद है, बेड बख्तियारी है, कच्ची लाल है, कच्ची शिकरानी है, जगीर सादकाबाद है, चक्कियल है, और बस्ती बिडानी है, नूरपुर जदीद है और मक्खन बेला के इलाके जो है वो शदीद जो है सैलाब की लपेट में है। सलाम मुतासरीन के यही मुतालबा है हुकूमत से कि हमें जो है टेंट भी दिया जाए और बाइज्जत तरीके से जो है खाना दिया जाए। जी, आपका बेहद शुक्रिया। राजनपुर में दरिया सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा, कोट मिठन के मकाम से 8 लाख क्यूसी का रैला गुजर रहा है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लोगों के इनखला का अमल तेज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक का कहना है कि 1,10,000 से ज़ायद अफराद और 1,22,000 से ज़ायद जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। 18 फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में सलाम मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। बिफरे रैलों का रुख सिंध की तरफ, चाचाना के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, दर्जनों बस्तियां डूब गई, फसलें तबाह, मुतासरीन माल मवेशियों समेत महसूर। गुड्डू सखर बिराज पर खतरनाक सैलाब की वार्निंग जारी, 24 से 36 घंटे अहम करार। पन्नू आकिल के गांव समूह चचड़ के करीब कश्ती उलट गई, 30 से ज़्यादा अफराद को बचा लिया गया। घोटकी में कादिरपुर और रावंती समेत कच्चे के कई इलाके डूब गए। गुड्डू बेराज और उसके मलहिका इलाकों के लिए 24 घंटे इंतहाई अहम हैं। ताज़ा 3 सूरत हाल बता रहे हैं ओबाड़ू से नुमाइंदा समा मोहम्मद हारून जट। जी हारून। आज बिल्कुल जू जू सैलाबी पानी पंजाब के बाद सिंध की जाने बढ़ रहा है, खतरात में इजाफा होता जा रहा है। माहिरीन का यह बताना है कि आइंदा आने वाले 24 घंटे जो हैं वो गुड्डू बैराज और इससे मुल्हका इलाकों के लिए इंतहाई अहम है। इस वक्त गुड्डू बैराज से मुल्हका एक इलाके उबाड़ो के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जिला इंतजामिया की जानिब से कई देहातों में रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया था। रेड अलर्ट वाले इलाकों में से कई अफराद नकल मकानी करके महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो गए हैं, जबकि अब भी कई अफराद ऐसे हैं जो अपने इलाकों और देहातों को छोड़ नहीं रहे। आज पाक नेवी की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी। उन्होंने बोट्स में बैठ के ये ऐलान किए हैं कि कोई भी शख्स जो यहाँ पर रहता है वो जल्द अज जल्द अपना कीमती सामान और मवेशियों को लेकर जो है वो बोट्स में सवार हो, नकल मकानी करके महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो जाए। वहाँ पर इमदादी कैंप जो है वो जिले इंतजामिया की जानिब से कायम कर दिए गए हैं, जिनमें तमाम तर जरूरियात जिंदगी की सहूलियात जिले इंतजामिया का ये कहना है कि सलाम मुतासरीन को फराम की जाएंगी, जबकि बंद के ऊपर टीमें रेस्क्यू 1122 की मौजूद हैं। अगर कोई भी शख्स उनके पास आता है तो उन्हें फौरन जो है वो महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल किया जाएगा, ये जिला इंतजामिया का कहना है। जी, आपका बेहद शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का गुजरात में सलाम मुतासरा इलाकों का दौरा, हुकूमत की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद की। कहा मौजूदा हुकूमत की वजह से गुजरात डूब गया, ये रेस्क्यू 1122 जैसा एक मंसूबा भी नहीं ला सके। ये ना रोके तो गुजरात ना डूबता। असल मुजरम यही है जो आके अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनके काम में बरकत ही नहीं है। जब भी ये आए हैं इस मुल्क से बरकत होती है। आज ये ऐसे फिर रहे हैं ना मारे हमारे मुखालफिन, और आए हैं कि हम बड़ा पैकेज लेके आए हैं, आज इनको पैक करके भेजेंगे इंशाल्लाह। मैं आज तक हारा ही नहीं, ये वाहिद जादूगर हैं, इन्होंने मेरी सीट भी खा ली। इंशाल्लाह कोई नहीं, इनके पेटों से निकालेंगे, यहाँ के फंड्स फिर वापस लेके आएंगे। एक ही मंसूबा इनके लिए काफी है 1122 का। आज सारे पाकिस्तान में 1122 वहाँ पहुँचती है। लाए एक भी मंसूबा नून लीग हमारे इस मंसूबे के मुकाबले में।
गुजरात में तरक्याती मंसूबों के नाम पर लूटमार करने वाले हमें किस मुंह से ताने दे रहे हैं। चौधरी साहब, गुजरात आपके वाइट पेपर प्रोजेक्ट्स की वजह से डूबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का परवेज़ इलाही के बयान पर रद्दमल। कहा, गुजरात में पानी की निकासी के एक हफ्ते बाद परवेज़ इलाही को होश आ गया। 30 साल गुजरात के नाम पर सियासत करने वाले गुजरात का सीवरेज नहीं ला सके। परवेज़ इलाही का गुजरात से मुतल्लिक बयान उनके अपने खिलाफ चार्जशीट है। रेस्क्यू 1122 से मुतल्लिक कहा, ये नून लीग की हुकूमत का ही कारनामा है कि एक ज़िले से शुरू होने वाले इदारे का दायरा कार पूरे सूबे तक फैलाया।